Hello dear students, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes. This is Nandan Singh. As you know that we have been continuously since last few lectures studying active passive. In the last lecture, I gave you something to practice and your homework was based on two different tenses. They were present perfect and simple past. I hope that you would have completed your homework. Some of you have some problems in understanding active passive. I know this. For those students, there will be a separate lecture so that they can understand and they can solve their problems as well. I shall try my level best to solve your problems in today's lecture. If it cannot be possible, please tell me. If your problem is clear, then okay. If your problem is not clear, tell me through by going in the comment section and either through the telephonic conversation. You can inform me, sir, I have still some problems, and I shall try to clear your doubt in upcoming classes as well. So before I start today's lecture, today's class, I would like to give you the answer of those homeworks which I gave you in the last lecture. So first and the foremost thing is that you have to match your answer which you have yourself solved. The first question was, उस लड़के ने तुम्हारी किताब चुरा ली है. Active of this sentence is that boy has stolen your book. That boy, let me repeat, that boy has stolen your book, and its passive will be your book has been. Since book is singular, and you know along with singular we cannot use have. I and you are two different exceptions which we studied in tense section, but apart from I and you, with rest other singulars, you have to use has. So, let me repeat, that boy has stolen your book. Your passive is, your book has been stolen by that boy. You have to change active into 6 forms and passive into 6 forms as well. And I am sure that you would have changed it as well. We don't have that much time to change all the sentences into 6 forms now. It will take a lot of time to complete, but by seeing the board, by observing the board, I am sure that you would have understood how to change into 6 forms. Thereafter, तुमने अमर को पढ़ाया है. You have taught Amar. You have taught Amar. Passive, Amar has been taught by you. क्लियर है आप? तुमने अमर को पढ़ाया है का एक्टिव क्या हुआ? You have taught Amar, और इसकी पैसिव क्या बनी? अमर हैज बीन टॉट बाय यू. अगला है, मैं यह बात भूल गया हूं. एक्टिव हुई इसका आई हैव फॉरगॉटन दिस मैटर. अब इसकी जब हम पैसिव करेंगे तो दिस मैटर हैज बीन फॉरगॉटन. दिस मैटर क्योंकि सिंगुलर है, यह बात एक बात, इसलिए हैज. बार बार मैं कह रहा हूं सिंगुलर के साथ हैज लगता है. केवल दो को छोड़ के आई और यू के साथ हैव लगेगा. बाकी कोई भी सिंगुलर है, सिंगुलर तो समझते हैं आप, जिससे पता चले एक ही, तो यह बात तो एक ही बात है. तो दिस मैटर हैज बीन फॉरगॉटन बाय मी. दिस मैटर हैज बीन फॉरगॉटन बाय मी. सुमित ने हम लोगों को आमंत्रित किया है. सुमित हैज इनवाइटेड अस. हम लोगों का जब ऑब्जेक्ट फॉर्म रहता है तो क्या लिखते हैं? अस. और जब हम उसको अस को आगे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी. और वी जानते हैं प्लूरल है, इसलिए उसके साथ क्या लगाएंगे? हैव.
तो वी हैव बीन इनवाइटेड बाय सुमित। और लास्ट है उसने मुझे माफ कर दिया है। ही हैज फॉरगिवन मी। ही हैज फॉरगिवन मी पैसिव हुई आई हैव बीन फॉरगिवन बाय हिम। ये और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उसको 6 रूपों में जरूर बदला होगा और जरूर बदलिए। नहीं तो हमने वॉइस जब शुरू की थी उसी में कहा कि 2 दिन में हम खत्म कर देंगे वॉइस, तब इतना लेंदी जाने। आप 6 रूप में बनाओगे ना तो टेंस भी मजबूत हो जाएगा, नए नए वर्ड्स जो है वो भी आप सीख पाओगे। कुछ वर्ड्स ऐसे जो शायद पहले आप नहीं जानते थे लेकिन 6 बार लिखोगे, इस तरह से विद्या आती है। 6 बार पैसिव बनाओगे। मान लेते एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अब WH आ गया, अब आप बका रहे हो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, और प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आता है। तो कहीं से आएगा कुछ भी आएगा हम बना लेंगे, या बना हुआ रहेगा तो हम चेक कर लेंगे कि ये सही है या गलत है। तो ये सारा चीज आपको करना है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है अच्छा से। तो एक अभी तक हम लोग किसके बारे में सुन रहे थे? प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। दूसरा था सिंपल पास्ट का प्रैक्टिस। तुमने यह किताब फाड़ दी। अब देखिए फाड़ना का टीयर होता है और सबको पता है। कमेंट में कुछ छात्रों ने मुझसे कहा है और ये उनकी दुविधा है, मैं समझता हूं। कई छात्र एक जैसे नहीं हैं, कुछ लोगों की जो बेसिक्स है कमजोर है। मैंने याद होगा कि वॉइस की शुरुआत में ही कह दिया था कि जिसका टेंस कमजोर रहेगा उसके लिए वॉइस नरेशन समझना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा टेंस वाला वीडियो जाकर के एक बार फिर से देखिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा अपडेटेड रहिए। जैसे तुमने यह किताब फाड़ दी, तो हमें इसका क्या करना था? एक्टिव बनाना था। तुमने यह किताब फाड़ दी सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है? टेंस में सब्जेक्ट के बाद V2 लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है, बाद में कॉम्प्लीमेंट्री अदर्स यानी जो बचा रह गया। तो तुमने यह किताब फाड़ दी का एक्टिव क्या हुआ? यू। फाड़ना का टीयर होता है, यहाँ V2 क्या लिखा है क्योंकि V2 होता है इसमें। यू टोर। और मेरी किताब का क्या हो गया? माई बुक। अब हम लोग आते हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सिंपल पास्ट का पैसिव एक्टिव और पैसिव दोनों समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए क्या है स्ट्रक्चर, आप गौर करोगे कॉमन एक ही रहता है सब में। सबसे पहले क्या लिखना? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। ऑब्जेक्ट समझ गए? अमित ने तुमसे माफी मांगी, तो आपने बनाया अमित अपोलोजाइज्ड टू यू। इसमें अमित है सब्जेक्ट, जो काम करे। माफी कौन मांग रहा है? अमित। और किससे मांग रहा है? तुमसे। तो यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो अमित अपोलोजाइज्ड टू यू। तो इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट पहले लिखना था, तो यू लिखे। पैसिव बना रहे हैं, याद रखिए एक्टिव में अलग स्ट्रक्चर चलेगा, पैसिव का अलग स्ट्रक्चर। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के साथ वाज वर्ब लगाइए, तो यू के साथ क्या लगेगा? वर्ब। V3 लिखना था तो अपोलोजाइज्ड का V3 भी अपोलोजाइज्ड ही होता है, यू वर अपोलोजाइज्ड। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर प्रीपोजिशन रहे तो वो हटाएंगे नहीं। यू वर अपोलोजाइज्ड टू, तब लगा है बाय, और अमित पीछे जाके अमित नाम नहीं बदलता है, अमित ही लिखा गया। उसी को हमने 6 अलग अलग रूपों में बनाया। तो जिनका टेंस अच्छा है उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं। जिनका टेंस कमजोर है, हम लोग सीढ़ी से ही चढ़ते हैं छत पर, और आपने बीच की सीढ़ी तोड़ दी है। सोचिए कि आप छत पर जा रहे हो और बीच में 4-5 सीढ़ियां टूट गई, तो फिर आपका छत पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपने टेंस को तोड़ लिया है, नहीं आपको आ रहा, तो फिर आपके लिए वॉइस मुश्किल होने वाला है, नरेशन बहुत मुश्किल होने वाला। तो थोड़ा उसको लेकर के सिंसियर है, थोड़ा गंभीर है, टेंस को एक बार ठीक से पढ़ें ताकि आप आराम से। तो जैसे हम तुमने यह किताब फाड़ दी, तो पहले एक्टिव बनाया होगा आपने यू टोर दिस बुक। अब जब हम पैसिव किए होंगे, जब आपने पैसिव किया होगा तो दिस बुक आगे ले गए होंगे, और दिस बुक के साथ हमें वाज लगाना क्योंकि सिंगुलर है। दिस बुक वाज, टीयर का तीसरा रूप क्या हो गया? टॉर्न बाय यू। दिस बुक वाज टॉर्न बाय यू। दूसरा है उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो उसने का ही हो गया। ही मजाक उड़ाना का बोर्ड पर मैंने लिखा था मेक फन ऑफ। V2 V3 एक ही होता है उसका, मेड फन ऑफ।
तो आपने ट्रांसलेशन क्या बनाया होगा, ही मेड फन ऑफ यू। अब यू को क्या करोगे आप, आगे ले जाओ, पैसिव बनाना रखना। यू के साथ क्या लगता है, वर, यू वर मेड फन ऑफ, वो लगा ना तीनों, मेड फन ऑफ, यू वर मेड फन ऑफ बाय, ही आगे था, पीछे जाके क्या हो गया, हिम। तो फिर से एक बार दोहराते हैं, यू वर मेड फन ऑफ बाय हिम, ये हो गया पैसिव। मैंने अफसोस जताया। आप में से किसी ने पूछा मुझसे कि सर इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब, तो मैंने, सब्जेक्ट हो गया आई, अफसोस ऑब्जेक्ट है रिग्रेट, और जताना क्रिया है, व्यक्त करना जताना एक ही चीज है। आई एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, हमने यहाँ हेल्प में लिखा था अफसोस का रिग्रेट होता है, जताना या व्यक्त करना का एक्सप्रेस का V2 V3 एक ही होती है, एक्सप्रेस्ड। तो आई एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, पैसिव आपने किया होगा रिग्रेट, क्योंकि एक ही अफसोस है, रिग्रेट वाज एक्सप्रेस्ड बाय मी, रिग्रेट वाज एक्सप्रेस्ड बाय मी। अगला है, आपने मुझे सांत्वना दी, यू कॉन्सोल्ड मी, यू कॉन्सोल्ड मी, एक्टिव हुआ, पैसिव जब बना मी को आगे ले गया, आई बन गया, आई वाज, आई के साथ वाज, आई वाज कॉन्सोल्ड बाय यू, ऐसे बनेगा। रवि ने तुम्हारी कलम लौटा दी, तो रवि रिटर्न्ड योर पेन, और योर पेन ही आगे जाएगा, तो योर पेन के साथ वाज, क्योंकि कलम एक ही है, योर पेन वाज रिटर्न्ड बाय रवि। ऐसे ही वैसे छात्र जिनको अभी भी दिक्कत हो रही है, मेरा कहना है गलत तो गलत सही, लेकिन बनाइए, दौड़ेंगे ना तो गिरते उठते दौड़ना सीख ही जाएंगे। गिरने के डर से अगर दौड़ेंगे नहीं तो जिंदगी में सरकते ही रह जाओगे, कभी दौड़ नहीं सकोगे। बिंदास भागो, भागते भागते गिरो उठो, मेरे कहने का मतलब बनाना शुरू करो। सर वाला एग्जाम्पल देखते हैं, 2 से 3 लेक्चर जाते जाते गलतियां ढेर होगी, लेकिन चौथा लेक्चर आपको कहने लगेगा अब हमको समझ में आ गया। कुछ छात्र ऐसे, अरे बाबा हमसे तो नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल चीज है, शुरू में ही छोड़ देते हैं। तो अध्ययन वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ऐसा ये विचार रखने वाले लोग आगे नहीं बढ़ पाते। तो थोड़ा बनाइए, कोशिश कीजिए। आज के लेक्चर में मैंने 2 टेंस को लिया है, देखते हैं क्या क्या है। बहुत मजेदार, बहुत आसान है, बड़ा आराम से आप समझ लोगे। पहले कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव। आते हैं पहले स्ट्रक्चर पर, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाज वर बीइंग V3 बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव, सब चीजें की है, कुछ नहीं बदला। वाज वर के साथ खाली इसमें क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है। आते हैं इसमें क्या था, ही वॉज मेकिंग एन एक्सक्यूज, किसका हम बना रहे हैं, वह बहाना बना रहा था। बहाना बनाना का होता है मेक एन एक्सक्यूज, तो ही वॉज मेकिंग एन एक्सक्यूज, उसी को मैंने 6 रूपों में बदला है। कैसे बदला ये बताने की अब जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम इसका पैसिव बना रहे हैं। एन एक्सक्यूज को आप आगे ले जाओगे, क्योंकि ये मैक तो क्रिया है, ही तो सब्जेक्ट है, वाज तो वाज वर्ब सहायक क्रिया है। एन एक्सक्यूज इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। एन एक्सक्यूज वाज बीइंग, मैक का तीसरा रूप क्या होता है, मेड बाय, ही पीछे जाके ही, ये भी 6 रूपों में। गौर से देखेगा बोर्ड को तो सारे 6 रूप आपको समझ में आ जाएंगे। आज मैंने होमवर्क के लिए ज्यादा नहीं दिया आपको, हो सकता था कि लोड हो रहा है आप लोगों को, इसलिए 3 ही सेंटेंस दिया है। बोर्ड पर आप देख लो, तुम एक तस्वीर बना रहे थे, वह हम लोगों के बारे में पूछ रहा था, अंकित कुछ बता रहा था, हेल्प मैंने दे दिया है, आप शिकायत नहीं कर सकते हमसे इसलिए नहीं बना सर ये वर्ड नहीं मालूम था, तो वो दे दिया। अगला है पास्ट परफेक्ट का पैसिव। क्या आप समझ गए क्या करना था, एक बार फिर से हम लोग आ जाते हैं। बनाना हमको किसका था, वह बहाना बना रहा था, तो हमने जैसा थोड़ी देर पहले कहा आपसे बहाना बनाना का था मेक एन एक्सक्यूज, तो पैसिव बना ही वाज मेकिंग एन एक्सक्यूज। इसका हम जब पैसिव एक्टिव बना ही वाज मेकिंग एन एक्सक्यूज, पैसिव क्या बनाएंगे, एन एक्सक्यूज को आगे ले जाएंगे। एन एक्सक्यूज वाज
बीइंग, मैक का तीसरा रूप क्या होगा, मेड बाय हिम, और उसी को दोनों साइड 6 रूपों में बदला गया है। होमवर्क आपको दिया गया, वो बनाएंगे। अगला है पास्ट परफेक्ट, उससे भी आसान, इसमें तो और कुछ खोजना खाजना है ही नहीं। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव के साथ हैड, बीन, V3 बाय सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव। जैसे उदाहरण हमने लिया है, उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देखा था, उसने मुझे देखा था तो क्या बोला, he had seen me, he had seen me। तो पैसिव क्या बना है, मी को आगे ले गए, मी आगे जाके क्या बना, आई, आई के साथ क्या लगा, हैड, फिर क्या लग गया, स्ट्रक्चर को देखेगा, आई हैड बीन सीन बाय, ही पीछे जाकर के हिम हो गया। इसका भी 3 एग्जांपल्स है, और जो हेल्प होना चाहिए था वो हेल्प मैंने दे दिया है। अब आज आप बनाओ, बना के मुझे बताओगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, और अगर नहीं बन रहा है तो फोन करके, कुछ बात होता है क्या कि आप कमेंट पर ठीक से लिख नहीं पाते हो, मुझे नहीं समझा पाते हो कि ये दिक्कत है, तो मेरा फोन नंबर है, आप फोन करके, और अगर लिख ही रहे हो तो तुम क्लियर लिखो, कोई शर्मिंदा नहीं, बिंदास। गलत काम करने में लाज लगनी चाहिए, अच्छा काम करने में कि मुझे जानकारी बढ़ानी है या जानकारी है नहीं वो लेना है, और उसके लिए सर से हम कुछ पूछ रहे हो, तो उसमें लाज और शर्म की क्या बात है, उसमें क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोग आपको गाली देने वाले हैं कि कितना बेवकूफ लड़का है, इसको कुछ नहीं आता है। आपको कौन देख भी कौन रहा है, इसलिए बिंदास जो लगे, सर हमको वर्ब पहचानने में दिक्कत होता है, सर हमको ऑब्जेक्ट पहचान में, अगर कमेंट में उसको थोड़ा लिखिए स्पष्टता कि मुझे खाली आप ये कहोगे कि मुझे दिक्कत हो रही है, तो कहाँ दिक्कत हो रही है वो मुझे भी तो पता होना चाहिए, है ना। खाली आप डॉक्टर को जाकर के बताओगे सर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो भैया क्या तबीयत ठीक नहीं लग, माथा दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, वो स्पेसिफिकली उसको बताओगे तभी तो समझ में आएगा। इसलिए आप हमको समझाओ कि सर हमको यहाँ दिक्कत हो रही है, फोन करके बोल सकते हो ठीक है, नहीं तो कमेंट में जाकर के मुझे समझा दो कि ये दिक्कत हो रही है, ताकि हम अगले लेक्चर में उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने सारी चीजों को समझा होगा, और होमवर्क एकदम पक्का 6 रूप में, मैं बार बार 6 रूप का हिमायती हूँ, जोर दे करके उसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इससे आपका प्रैक्टिस अच्छा होता है, इसलिए 6 रूप में आप बनाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी, और क्लास करते रहिए, सिलेबस तो आराम से पूरा होगा। आपके लिए 12 पहली बार है, मेरे लिए पहली बार नहीं है, इसलिए मुझे मालूम है कैसे चलना है, क्या करना है। तो हम लोग अगले लेक्चर में और बातें करेंगे क्लास के बारे में कि कैसे कैसे क्या करेंगे फ्यूचर में। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।